Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sangwan, Department of Kriya Sharik, and our next topic will be adrenal glands. Adrenal glands are called as life-saving glands or essential endocrine glands. Why? Because loss or absence of adrenocortical hormones causes death within 3 to 15 days. Now the function anatomy of the adrenal glands. These are two in number. Each gland situated just above upper pole of each kidney. That is why they are also called as suprarenal glands. And each gland weighs about 4 ग्राम. ये जो ग्लैंड जो हैं ये किडनी के अपर पोल के ऊपर सिचुएशन रहते हैं और हर ग्लैंड का जो है वजन जो है इसके अंदर 4 ग्राम जो है बताया गया है. नाउ द पार्ट्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स, it is made up of two distinct parts. One is adrenal cortex and the next one is adrenal medulla. Now the adrenal cortex is the outermost portion and it constitutes 80% of total glands. And the next one is adrenal medulla. It is the central portion and it constitutes 20% of total gland. And 80% के अंदर adrenal medulla and not adrenal medulla, 80% के अंदर जो है adrenal cortex और 20% के अंदर adrenal medulla है. Now I explain adrenal cortex. It develops from the mesonephrons, which gives rise to the renal tissue, and the hormones secreted from this is known as corticosteroids. And why they are called as corticosteroids? Because the adrenocortical hormones are steroidic in nature. That is why they are called as corticosteroids. And these are classified into 3 groups. Number 1 is mineralocorticoids, number 2 is glucocorticoids, and number 3 is sex hormones. So now first one is mineralocorticoids. These are the corticosteroids that acts on the minerals, that is electrolytes, especially on the sodium and potassium. And these are 2 in number. One is aldosterone and next one is 11-deoxycorticosterone. So these mineralocorticoids are transported in blood by binding with the plasma proteins, especially globulins. And this binding will be is loose. That is why 50% of these hormones are present in the free form. Now, what is the source of secretion? These hormones are secreted through the zona glomerulosa of the adrenal cortex. Now, what are all the functions? फंक्शंस में रहता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की 90% जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एल्डोस्टेरोन के थ्रू ही जो है ना कवर अप होती हैं. इसीलिए जो है एल्डोस्टेरोन को जो है ना लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा गया है, बिकॉज इट मेंटेन द ऑस्मोलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ ईसीयू, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. और नाउ व्हाट विल द रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन की रेगुलेट का सिक्रेशन जो है रेगुलेट कैसे होता है? एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. Which are those factors? Number 1 is increase in potassium ion concentration in ECF, and number 2 is decrease in sodium ion concentration in ECF. Third one is decrease in ECF volume, कि अगर ECF की वॉल्यूम अगर कम हो जाती है देन जो है ना ये उसको सिक्रेशन को जो है रेगुलेट करता है. एंड फोर्थ वन इज एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, जो है ना ये 4 वे हैं इसको रेगुलेट इसकी सिक्रेशन को रेगुलेट करने के लिए. नाउ सेकंड वन इज ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स. और इसमें क्या पता है कि द ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स मेनली एक्ट्स ऑन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स. एंड दीज आर 3 नंबर. नंबर 1 इज कोर्टिसोल, नंबर 2 इज कोर्टिकोस्टेरोन एंड नंबर 3 इज कोर्टिसोन. और इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इनका भी जो है ना स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसके थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. इसको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स. नाउ इनका सिक्रेशन कहाँ से होगा? सिक्रेशन होता है इनका सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या पता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर सिक्रेटेड बाय मेनली बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स. नाउ द फंक्शंस क्या है ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स के? फंक्शन में पता है कि कोर्टिसोन जो है इज मोर पोटेंट एंड इट हैज मोर देन 95% ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड एक्टिविटी जो होती है ना वो कोर्टिसोन करता है. और नंबर 2 जो कोर्टिकोस्टेरोन जो था वो सिर्फ 4% एक्टिविटी उसकी रहेगी. लास्ट वन जो कोर्टिसोन जो है उसकी सिर्फ ओनली जो है ना 1% उसकी एक्टिविटी रहती है. दैट इज वाई दीज आर लेस पोटेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन. तो इसमें क्या बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो इसको रेगुलेट करता है इसकी सिक्रेशन को बाय सिक्रेटिंग द ACTH, दैट इज एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स. और ACTH का सिक्रेशन जो होता है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है ना इसका रेगुलेट होता है. नाउ लास्ट वन एंड थर्ड वन इज सेक्स हार्मोन्स. तो एड्रेनल सेक्स हार्मोन्स आर सिक्रेटेड मेनली बाय द जोना रेटिकुलरिस. और जो मेनली जो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ना मेनली सेक्स हार्मोन्स को ही रिलीज करता है. इट सिक्रेट्स मेनली द
male sex hormones, but in small quantity estrogen as well as progesterone also gets secreted through it. अब इसमें जो है 3 तरह के हार्मोन्स इसमें सीक्रेट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, नंबर 2 इज एंड्रोस्टेनिडियोन एंड लास्ट वन इज टेस्टोस्टेरोन. तो इसमें क्या होता है कि एंड्रोजन जो है इन जनरल एंड्रोजन सेक्स हार्मोन्स जो है ये बॉडी के मैस्कुलाइन फीचर्स को बनाने के लिए जो है उसमें सहायक होते हैं. इन जनरल these are responsible for the masculine features of the body. Now we'll discuss about the applied physiology. Applied physiology के अंदर क्या रहता है कि जो भी इन हार्मोन्स का जो हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन जो है उसकी वजह से क्या कुछ डिजीज और कुछ एब्नॉर्मलिटीज जो बॉडी के अंदर आती हैं वो सब अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर जो पढ़ी जाती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इसके अंदर कशिंग सिंड्रोम को लेंगे. कशिंग सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द ओबेसिटी एंड इसके रीज़न क्या है होने के? इट अकर ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड पर्टिकुलरली कोर्टिसोल. इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? साइन एंड सिम्टम्स में देयर विल बी मून फेस ऑफ द पेशेंट, दैट इज एक्सेसिव फैट अकोमुलेशन ओवर द फेस. एंड नेक्स्ट मीन टोसो. टोसो मीन्स फैट अकोमुलेशन ओवर द चेस्ट एंड एब्डोमेन. नेक्स्ट विल बी बफेलो हम, that there will be the hunch because the excessive fat accumulation over the neck and the dorsal region. And next one will be the lean extremities, thinning of extremities, that कि हमारे जो पेशेंट के जो है ना हाथ और पैर एक्सट्रीमिटी जो हैं वो बड़ी जो है ना लीन रहेंगी, बहुत पतली रहेंगी. एंड पोर्ट बेली, दैट इज द एक्सेसिव accumulation of the fat over the abdomen. नेक्स्ट में पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, कि स्किन के ऊपर कोई भी डिस्कलरेशन किसी प्रकार के पिगमेंट्स वगैरह जो है वो हाइपो पिगमेंटेशन या फिर हाइपर पिगमेंटेशन देयर विल बी जो है वो रहेगा. सो नेक्स्ट वन इज फेशियल रेडनेस, कि पेशेंट के फेस के ऊपर जो ना रेडिश जो है रेडनेस जो है रैशेस वगैरह जो है ना अवेलेबल रहेंगे. हाइपरग्लाइसेमिया, दैट इज द इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एज वेल एज इन यूरिन. सो नेक्स्ट वन इज हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म and it occurs due to the increased secretion of aldosterone in the blood. That is why it is called as hyperaldosteronism. इसके दो टाइप बताई गई हैं. फर्स्ट में प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म एंड सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म. और इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या बताएंगे? देयर विल बी इंक्रीज इन ECF वॉल्यूम एज वेल एज इन ब्लड वॉल्यूम. देयर विल बी हाइपरटेंशन and there will be depletion of potassium which cause renal damage, कि पेशेंट को जो है renal damage रहेगा. और muscular weakness and metabolic alkalosis. And next one is adrenogenital syndrome. इसमें क्या बताएगा कि secretion of abnormal quantity of androgen hormones develops androgenital syndromes. इसमें symptoms क्या रहते हैं? इसमें मेल के पेशेंट के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों में सेपरेट रहते हैं. फीमेल्स में रहेगा इंक्रीज, देयर विल बी इंक्रीज मस्कुलर ग्रोथ, डीपनिंग ऑफ वॉइस, की आवाज़ का भारी हो जाना, एमनोरिया और इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एंड मेल टाइप ऑफ फेयर ऑल ओवर द बॉडी. और मेल्स में क्या होगा? मेल पेशेंट के अंदर रहेगा फेमिनाइजेशन, कि देयर विल बी जो है फीमेल कैरेक्टर्स इन द बॉडी. एंड गायनिकोमेस्टिया, देयर विल बी इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, एट्रोफी ऑफ टेस्टिस, दैट इज रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिस, एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मूवमेंट, दैट इज द लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर. So next we will take Addison disease. Addison disease में क्या बताया? Addison disease is the failure of adrenal cortex to secrete corticosteroid hormone. और इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या कुछ रहते हैं इसमें? There will be pigmentation of the skin as well as mucous membrane, and there will be hypotension, and there will be hypoglycemia, and muscular weakness in the body. There will be nausea, vomiting, and by all this, now I am closing the chapter, adrenal cortex. Hope you people have understood very well. Thank you.